Hi everybody, I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik. Here I am with a fifth lesson of our syllabus, his first flight. It's a beautiful story of a young seagull which is written by Irish novelist Leon O'Flaherty. This is a story of a young seagull who was afraid of flying in the sky. He's very young, so he feels very afraid to fly in the sky. He had never experienced flying in the sky. His parents tried to encourage him, enthused him, but of no use. He was not ready to fly, and at the end, it is only hunger which compelled him to take his first flight. So you can see the picture of a seagull who is flying in the sky. तो बच्चों हम लोग ये जो कहानी जो हिज फर्स्ट फ्लाइट नाम की जो छोटी सी कहानी है, हमारे आयरिश राइटर हैं लियन ओफ्लाहर्टी, उनके द्वारा लिखी हुई ये कहानी है जो हमें मोटिवेट करती है, हमें एंकरेज करती है कुछ करने के लिए कि क्या कौन सी बातें हैं कि जो जिसकी वजह से हम लोग ज़िंदगी में हमारे उद्देश्य की तरफ जा सकते हैं, ये बताने की कोशिश एक छोटी सी कहानी द्वारा हुई है। एक छोटा सा यंग सीगल है, समंदर का पक्षी है, यंग है, कभी आकाश में उड़ा नहीं है, तो इसलिए वो डर रहा है आकाश में उड़ने के लिए क्योंकि वो बहुत ऊंचा रहता है, समंदर से ऊपर बहुत ऊंचाई पर है। तो उसके पेरेंट्स जो है, उसके माँ बाप उसे एंथुज कर रहे हैं, उससे एंकरेज कर रहे हैं, उसे उड़ान भरने के लिए प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उड़ने के लिए तैयार नहीं है। और अंत में वो जब उसे बहुत गहरी भूख लगती है तो उस भूख की वजह से ही ये छोटा बच्चा है वो आकाश में पहली उड़ान भर लेता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं चित्र में वो किस प्रकार से उड़ान भर रहा है। तो आज हम लोग लेसन का फर्स्ट पार्ट जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 31 पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to fly his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraidingly him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he couldn't move. चित्र में दिख रहा है आपको सीगल आकाश से समंदर की तरफ देख रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस स्टोरी में फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है। द यंग सीगल, हमारा ये जो यंग सीगल है, हाँ, ही वॉज अलोन ऑन हिज लेज। यंग सीगल जो है वो दिख रहा है, ही वॉज अलोन ऑन हिज लेज, चित्र में दिख रहा है, ही वॉज अलोन ऑन हिज sledge, on his ledge. This part is called ledge, Ledge, ledge. So this young seagull is alone on his ledge. चट्टान के जो उभरा हुआ बाग दिख रहा है ना ऊपर, तो यहाँ पे he is alone, अकेला है। He is alone on his ledge. His two brothers and sister had already flown away the day before. उस दिख रहा है चित्र में, his two brothers and his sisters, उसके जो दो ब्रदर्स हैं
और एक सिस्टर है, दे हैव ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर, एक दिन पहले उसके जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, दे हैव ऑलरेडी फ्लॉन अवे इन द स्काई, बट ही इज़ अफ्रेड, क्या है, ही इज़ अफ्रेड, द लिटिल सीगल इज़ वेरी अफ्रेड, अकेला ही खड़ा है, ही इज़ अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, वो उनके साथ उड़कर जाने के लिए क्या हो रहा है, उसे डर लग रहा है, he is sitting on the ledge, he is afraid to fly with his two brothers and sister. Somehow when he had taken a little run, कैसे तो भी उसने little run लिया, forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wing, he became afraid. क्या हुआ, somehow when he had taken a little run forward to the brink, चित्र में brink दिखाई दे रही है, somehow he had taken a brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. क्या हुआ, जैसे उसने कोशिश की टू रन फॉरवर्ड, थोड़ा सा भागते हुए आया आगे, टू द ब्रिंक, ब्रिंक दिखाई दे रहा है आपको, ब्रिंक का मतलब क्या है, चट्टान का कोना, उस कोने तक वो उड़ता हुआ आया लेज के, ही अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग, उसने क्या किया, ही अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग, उसने देख रहे हैं आपको चित्र में, ही अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग, बट ही बिकेम अफ्रेड, लेकिन वो क्या हो गया, डर गया. So why he was afraid, why the young seagull was afraid, why he became afraid? There were two reasons why he was afraid. The first reason is the great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. चित्र में दिख रहा है क्या था वो, द ग्रेट एक्सपांस ऑफ अ सी, समंदर जो है वो बहुत गहरा समंदर था, बहुत लंबा चौड़ा समंदर था, दैट स्ट्रेच डाउन बीनीथ, जो उसके नीचे उसे दिखाई दे रहा था, एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और वो बहुत दूर तक फैला हुआ था, माइल्स डाउन, इट वॉज स्ट्रेच, बहुत दूर तक वो फैला हुआ था, एंड सो ही वॉज अफ्रेड, he was afraid that, or he was certain that his wings would never support him, उसके जो पंख हैं वो उसे कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. क्या किया उसने, he was certain, उसे पूरा विश्वास था that his wing would never support him, उसके जो पंख हैं वो उसे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, सपोर्ट मतलब उसे कभी सहारा नहीं देंगे. So he bent his head, उसने देखो चित्र में दिख रहा है, he bent his head, उसने अपना हेड जो है, अपना सिर जो है वो नीचे किया, एंड ही रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, और वो पीछे मुड़कर भाग गया, कहाँ पे, अपने लिटिल होल की तरफ, अपना जो छोटा घोंसला था उस घोंसले की तरफ, अंडर द लीच, जो लीच के नीचे था, वो उभरे उभे चट्टान के उभरे उभे कोने के नीचे जो था वहाँ पे वो उड़कर चला गया, चलकर चला गया, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पे वो रात को सोता था. तो डर के मारे हमारा जो सीगल है, ही अगेन कम बैक्स टू द हिज ओन होल वेयर ही यूज्ड टू स्लीप एट नाइट, इवन व्हेन हिज ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स, उसके जो टू ब्रदर्स हैं एंड हिज सिस्टर, दिख रहा है चित्र में, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स, हुज विंग्स वेर फार शॉर्टर देन हिज ओन, उसके जो विंग्स थे उनके वो बहुत ही शॉर्ट थे, कैसे थे, शॉर्ट थे, देन हिज ओन विंग्स, उसके खुद के विंग्स की तुलना में उसके भाई बहनों के विंग्स कैसे थे, दे वेर वेरी शॉर्टर देन हिज ओन विंग्स. दे रैन टू द ब्रिंक, वो कहाँ चले गए, ब्रिंक तक, मतलब चट्टान के कोने तक वो उड़ गए. दे फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपनी विंग्स फ्लैप किए, चित्र में दिख रहे हैं, एंड दे फ्लू अवे, और वो क्या हो गए, फ्लू अवे हो गए. बट ही फेल्ड टू मस्टर अप द करेज, लेकिन हमारा सीगल जो आपको चित्र में दिख रहा है, ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, उसने करेज मस्टर करना मतलब हिम्मत जुटाना, मस्टर अप करेज करना मतलब हिम्मत जुटाना जो था वो नहीं जुटा पाया. टू टेक दैट प्लंज, प्लंज मतलब जोर से कूदने के लिए या उड़ान भरने के लिए जो करेज चाहिए था उसके अंदर, जो हिम्मत जुटानी चाहिए थी उसने, वो नहीं भर सका.
which appeared to him so desperate. चित्र में दिख रहा है, he was very desperate to fly in the sky, but he couldn't fly in the sky because he didn't had the courage. He couldn't muster up the courage to fly in the sky. बेचारा चित्र में दिख रहा है कि उसके अंदर कोई करेज ही नहीं, साहस ही नहीं था. उसके भाई बहनों के पंख छोटे थे, फिर भी वो उड़ गए. बट he couldn't take a plunge because he couldn't muster up his courage. वो muster up ही नहीं कर सका करेज. चित्र में दिख रहा है, बहुत डेस्परेट दिख रहा है वो, फिर भी वो नहीं उड़ पा रहा है. His father and mother had come around calling to him. चित्र में दिख रहा है, his father and mother they come around him, उसके आसपास है. calling him, किस प्रकार से उसे कॉल कर रहे हैं? shrilly calling कर रहे हैं. shrilly upbraidingly. shrilly मतलब जोर जोर से, harsh voice से, in a very loud and harsh voice, जोर से उसे चिल्ला रहे हैं. upbraiding कर रहे हैं मतलब डांट रहे हैं. दे आर थ्रेटनिंग हिम, उसे थ्रेटन कर रहे, डरा रहे हैं. टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, वो स्टार्व करता रहेगा. स्टार्व मतलब भूखा रह जाएगा लेज पर ही. लेज मतलब चट्टान के उभरे हुए भाग पर वैसा ही खड़ा रहेगा, तो ही विल बी स्टार्व मतलब भूखा रहेगा. अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक वो उड़ नहीं पाएगा. उसके पेरेंट्स उसे क्या कर रहे हैं? जोर जोर से चिल्लाकर डांट रहे हैं, डरा रहे हैं, समझा रहे हैं. बट दोनों समझाने की कोशिश कर रहे उसके पेरेंट्स उसको. बट फॉर हिज लाइफ ऑफ हिम ही कुडंट मूव. लेकिन हमारा सीगल चित्र में देख रहा है, ही कुड नॉट मूव. हमारा सीगल जो है वो उड़ने के लिए तैयार नहीं है. तो बच्चों, इस पार्ट में हम लोगों ने देखा द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. His two brothers and sisters were flying in the sky. The little seagull tried to fly, but he was afraid. He just come to the brink. He tried to open up his wings, but he couldn't fly because he was afraid, because there was a great expanse of a sea which was stretched down beneath. And it was very long down and miles down. And he was certain that his wings would never support him to fly in the sky. So what did he do? He simply bent down his head and go back to his hole where he used to sleep at night. Actually, he know that his brothers and sisters' wings were very short, but still they fly in the sky. But he couldn't muster up his courage to take a plunge into the sky. He was actually very desperate to fly in the sky, but he couldn't fly in the sky. His parents came to him. They shrilly, upbraidingly threatened him. They told him that if you will not fly, you will starve. But he couldn't listen to them. For the life of him, he couldn't move. His parents tried to threaten him, but he couldn't move. इस प्रकार से इस पार्ट में हम लोगों ने देखा कि हमारा सीगल किस प्रकार से उड़ने से डर रहा है. आगे क्या होने वाला है अगले पार्ट में हम लोग कल देखेंगे. ओके बच्चों, थैंक यू.